Good morning all of you. Chapter 9, Class 12th, Rural Development. So what does rural development mean, or what do you understand by rural development? So number first, rural development. Rural development. Meaning of rural development. Rural development means an action plan for the social and economic growth of the rural area. Means growth and development of rural area through action plan. So action plan for growth and development of rural area. So rural development means it is an action plan for the social and economic growth of rural area. The action plan is to focus on the lingering and emerging challenges in rural area. For example, rural credit, rural marketing, or sustainable livelihood, or organic farming. And action plan focuses on number first, how to provide credit or how to provide credit by rural area. Number second, rural marketing, markets in rural area or marketing system in rural area. Number third, organic farming, and number fourth, sustainable livelihood. So rural development means action plan for social and economic growth of rural area, and action plan focuses on rural credit, organic farming, rural marketing, sustainable livelihood, etc. Clear? Now next topic, rural credit. There are three types of credit. Rural credit. There are three types of credit: short-term credit, medium-term credit, and long-term credit. Short-term credit छोटे पीरियड के लिए जो लोन्स दिए जाते हैं. Short-term credit is basically required for the purchase of inputs like small inputs like seeds, fertilizer, pesticides, insecticide, making payments of electricity bills. Small and marginal farmers hardly save enough to fulfill their short-term credit need. The loans are raised generally for a period ranging between 6 to 12 months. So, short-term credit is basically required for purchase of inputs like insecticides, pesticides, seeds, fertilizers, for making payments of electricity bill, etc. And the range between these credits or short-term credit is 6 to 12 months. 6 to 12 months में क्या करना होता है? इस क्रेडिट को लौटाना होता है. So शॉर्ट पीरियड के लिए जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट. और ये छोटे मोटे इनपुट्स खरीदने के लिए छोटा अमाउंट होता है, लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, फर्टिलाइजर, इन सबको खरीदने के लिए दिया जाता है ये लोन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मीडियम टर्म क्रेडिट. It is required for the purchase of machinery, construction of fences, digging the wells, etc. So medium term credit, it is required for purchase of machinery, small machinery, purchase of machinery, construction of fences. Fences में जो बाड़ बनाए जाते हैं खेत के आसपास ताकि जानवर वगैरह घुसे ना या कोई घुसे ना. Construction of fences, digging the wells मतलब कुएं वगैरह खोदते, etc. So medium term credit is required for the purchase of machinery, construction of fences, digging the wells, and such loans are ranging between 12 months to 5 years,
और इनका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका 6 to 12 मंथ, इसका 12 months to 5 year, मतलब 5 साल तक इन्हें लौटाना होता है, 12 महीने से 5 साल के बीच में इन्हें लौटाना होता है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट 6 to 12 months में लौटाना होता है, मीडियम टर्म क्रेडिट 12 months to 5 year। नाउ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, it is required for the purchase of additional land for carrying out permanent improvement on the existing land, and the period of such loans ranges between 5 to 20 years. So long term credit, it is required for the purchase of land या जो बड़े अमाउंट में जो लोन लिया जाता है, लैंड और एनिमल्स। सो लॉन्ग टर्म क्रेडिट मीन्स इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ लैंड, एनिमल्स, big machinery, etc. And these credits ranging between 5 years to 20 years. 5 years to 20 years, मतलब ये 5 साल से 20 साल के बीच में आपको लौटाना होता है। 4 साल तक कुछ नहीं, 5वें साल से 20वें साल तक आपको ये लोन धीरे धीरे क्या करना होता है, चुकाना होता है। So there are 3 types of credit: short term credit, medium term credit, and long term credit. Short term credit, it is basically required for purchase of small inputs like insecticides, pesticides, fertilizers, seeds, for making payments of electricity bill, etc. These credits or these loans are raised generally for period ranging between 6 to 12 months. और ये हमें कब लौटाने होते हैं, 6 से 12 महीने के बीच में हमें ये जो लोन से ये क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, वो लौटाने होते हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट, इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, डिगिंग द वेल्स। इन सब के लिए मीडियम टर्म के लिए या मीडियम पीरियड के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, गांव वालों को लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। और ये कब तक लौटाना होता है, 12 months to 5 years. Now long term credit, it is basically required for purchase of land, animals, big machinery, etc. And these loans are ranged between 5 years to 20 years. और ये कब तक लौटाने होते हैं, 5 साल से 20 साल के बीच में ये आपको लौटाने होते हैं। Now sources of rural credit, आखिर ये लोन्स कहाँ से मिलता है? So there are 2 sources of rural credit. Number first, institutional sources. Institutional sources like banks, regional rural banks, or NABARD, etc. And number second, non-institutional sources. Non-institutional मतलब जो institution से related नहीं होती, like bank, like महाजन्स, money lenders, landlords, साहूकार, etc. So there are 2 sources of rural credit. गांव के लोगों को loans कहाँ से मिलते हैं? There are 2 sources of rural credit. Number first, institutional sources. Number second, non-institutional sources. So non-institutional sources includes landlords. Landlords means jamindars, landlords, money lenders, and friends, relatives. सब non-institutional। तो जब हम अपने friends से लोन ले रहे हैं, relatives से लोन ले रहे हैं, या हम मनी लैंडर, जमींदार वगैरह से लोन ले रहे हैं, साहूकार से, महाजन से लोन ले रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। Non-institutional sources accounted for 93% of total borrowing of the farmer in the beginning of first 5-year plan. Means 1951 में हमारी जो कंट्री थी, ये जो हमारे विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो 93% लोन कहाँ से लेते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, महाजन्स, जमींदार, मनी लैंडर या लैंडलॉर्ड्स वगैरह से लेते थे। और सिर्फ 7% लोन किससे लिया जाता था, बैंक से लिया जाता था। जो अब क्या हुआ है, धीरे धीरे चेंजेस आए। 2017 की बात करें तो हमारी कंट्री में 100% लोन्स हम किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं। ये महाजन्स, मनी लैंडर या लैंडलॉर्ड्स वगैरह, जमींदार वगैरह, उन्हें अब अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इट इंक्लूड्स लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, महाजन्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्सेट्रा, जो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं होते थे, एक्सेट्रा। So there are 2 sources of rural credit, non-institutional sources. It includes landlords, money lenders, mahajans, friends, relative, etc. And 93% of the total borrowing of the farmers in the beginning of first 5-year plan are sources from non-institutional source. और 1951 की बात करें तो कितना परसेंट हम या फार्मर्स कितने परसेंट लोन उससे ले रहे थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से 93%। सिर्फ 7% ऐसा था जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से
लोन्स लिए जा रहे थे। क्लियर ना। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स जो सहकारी बैंक बोला जाता है ना आजकल, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक जिन्हें हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, बहुत जगह देखने को आप लोगों को मिलती होगी रूरल बैंक्स, cooperative societies, etc. Together they accounting for only 7% in the beginning of 5-year plan. मैंने आपको बताया 1951 में ये सिर्फ 7% लोन दे रही थी, but presently their share has increased to over 76%। पर धीरे धीरे इनका शेयर बढ़कर अब कितना हो गया 76%। और आजकल तो मोस्टली सब लोग किससे लेते हैं लोन्स, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते, कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से नहीं लेता, क्योंकि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होते थे। जो ये जमींदार लैंडलॉर्ड्स कभी भी लोन प्रोवाइड करते थे, पर इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज्यादा हाई रहता था, और जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, वो इन्हें चुका नहीं पाते थे, और धीरे धीरे जो फार्मर्स होते थे एक तरह से स्लेव बन जाते थे, बंधुआ मजदूर टाइप के बन जाते थे जमींदार, मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स के। क्लियर। So there are two sources of rural credit, institutional and non-institutional sources. Institutional sources. Number first, cooperative credit societies. Cooperative credit society. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या सहकारी जो बैंकें वगैरह होती है, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या देती थी फार्मर्स को, एडिक्वेट मीन सफिशिएंट, एडिक्वेट लोन प्रोवाइड करती थी, एडिक्वेट मीन सफिशिएंट लोन प्रोवाइड करती थी एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। So cooperative societies provide adequate credit to the farmer at reasonable rate of interest. This society also provide guidance in diverse agricultural operation with a view to increasing crop productivity. और ये टाइम टू टाइम फार्मर्स को गाइड करती थी ताकि एग्रीकल्चर के बारे में बताती थी, ताकि क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। Currently, cooperative accounts for 16 to 17% of rural credit। और अभी ये कितना लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 to 17% जो ये सहकारी बैंकें लोन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। दिस सोसाइटी आर टू एंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर। एक तो टाइम पे देती है और साथ ही साथ ज्यादा लोन देती है। नंबर सेकेंड, elimination of the money lenders. So these society provide rapidly credit to the farmers at reasonable rate of interest. Number second, abolition of intermediaries or money lenders. ये आगे से क्या हुआ, जमींदार वगैरह क्या हो गए, एक तरह से खत्म हो गया, जमींदार से लोगों ने लोन्स या फिर क्रेडिट लेना बंद कर दिया। नंबर थर्ड, क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब जो क्रेडिट की फैसिलिटी जो कहीं कुछ कुछ जगहों पे लिमिटेड थी, वो अब क्या होगी, पूरी कंट्री में फैल गई। क्रेडिट फैसिलिटीज स्प्रेड टू ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, to all regions of the country. Clear? So cooperative credit society, it provides adequate or sufficient amount of credit at reasonable rate of interest to the farmers. Currently 16 to 17% of rural credit flow through cooperative credit societies. The main features of cooperative credit societies are: number first, timely and rapid flow of credit to the farmers. Number second, abolition of money lenders, landlords, mahajan, sahukars, and number four, third, credit facilities spread to all regions of a country. Clear? Number second, SBI, State Bank of India, and other commercial banks. SBI and other commercial banks. Commercial means जो ट्रेड के लिए जो बैंक्स वगैरह होते हैं, व्यापार करने के लिए जो बैंक्स होती है। Number second, SBI, State Bank of India, and other commercial banks.
the commercial banks. So, the SBI of India was set up in 1955 with a focus on, सबसे पहले SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में कब आई थी? 1955 में। और इसका मेन मोटिव ये नहीं था कि ये गवर्नमेंट की बैंक है, ये करना है वो करना है। इसका मेन मोटिव था टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, गरीबों या फिर आप बोल सकते हैं जो गांव वाले लोग थे उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना। तो ये सबसे पहले SBI कब आई थी? 1955 में है। और इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड रूरल credit. The government realized that rural credit needs could not be met by the cooperative credit societies alone, and the commercial banks should play an important role. धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज होने लगा कोऑपरेटिव सोसाइटी SBI अकेले फार्मर्स को लोन नहीं दे सकती, और इसके बाद क्या बना? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स ने फार्मर्स को क्या देना शुरू किया? लोन्स प्रोवाइड करना शुरू किया। सो कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स। नंबर थर्ड, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, मींस ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स, RRB and land development banks were set up to promote credit supply, particularly in the remote rural area. Remote means backward, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या जो एकदम पिछड़े हुए गांव हैं उनको प्रोवाइड करना लोन्स, ये RRB का काम था, ये रीजनल रूरल बैंक का काम था। सो RRB and land development banks were set up to promote credit supply. It is developed to promote credit supply, especially in remote areas, especially in remote rural area. Remote means जो एकदम अलग हो गए, जिन गांव पे कोई ध्यान नहीं दे रहा उन्हें बोलते हैं रिमोट एरिया, मतलब एकदम आउटसाइड में पड़ गए, रिमोट रूरल एरिया। These banks operate at the district level and are under obligation to focus on credit needs of weaker sections of rural population. ये नॉर्मली ये जो बैंक्स होती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स होती है वहां पे होते हैं, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? जो वीकर सेक्शन है, वीकर मीन्स जो अपनी नेसेसिटी मीन्स जो अपने रोटी कपड़ा मकान भी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है। क्लियर? नंबर फोर्थ, नबार्ड। नबार्ड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बैंक थी जो किसान है या जो विलेजर्स है उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती थी। ये कब बनी थी? 1982 में। सो नबार्ड इज एन एपेक्स मीन्स बैकबोन। नबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। It emerged in 1982 and it is an apex bank to provide rural credit. It is an apex bank to provide rural credit. It handling policy, planning and operation in the field of rural credit. And the main functions of NABARD are: number first, to serve as an apex funding agency for the institutional providing credit in rural area, to take appropriate measures to improve the credit delivery system. Number third, to coordinate the rural financing activities of all credit institutions and to undertake monitoring and evaluation of project refinanced by it. Clear? Now next topic, rural marketing. गांव में जो ये मार्केटिंग वगैरह होती है कैसे होती है? सो आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल कट जाती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन फार्म, प्रोसेस इट, ग्रेड इट, पैकेज इट एंड स्टोर इट बिफोर इट इज फाइनली ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेल। सो आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटने के बाद फार्मर क्या करता है? सारी की सारी जो उसकी क्रॉप्स होती है उसे गैदर करता है, इकट्ठा करता है। पहले तो उसने काट दिया ट्रैक्टर से, अब वो धीरे पूरी फसल को क्या करेगा या क्रॉप्स को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस मीन्स सेपरेटिंग ग्रेन्स और सेपरेटिंग स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन, जो ग्रेन्स में जो भी कचरा वचड़ा होता है उसे अलग करता है। देन पैकेजिंग, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस
अच्छा प्रोड्यूस, अच्छा जो प्रोडक्ट है उसे ए ग्रेड देता है, जैसे बासमती राइस है उसे ए ग्रेड दिया, जो सिंपल राइस है उसे बी ग्रेड दिया, और जो मोटा चावल है और जो मतलब जो कोर्स ग्रेन है उसे हमने सी ग्रेड दे दिया। सो ग्रेडिंग द क्वालिटी, देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस, फिर उसे प्रोड्यूस जो भी उसका प्रोडक्ट है उसे पैकेज या पैक करता है, देन स्टोरिंग, फिर वेयर हाउस में स्टोर कर देता है, देन सेलिंग द प्रोड्यूस। तो रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स those activities or process which help in getting best price for his produce. So the farmers need to assemble their produce. After harvesting, the farmers needs to assemble their produce, and there are 5 ways how to assemble their produce or their product. Number 4, gathering the produce. गैदरिंग मीन जब फसल कट जाती है उसके बाद वो फसल को क्या करता है, इकट्ठा करता है, गैदरिंग द प्रोड्यूस, देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग मीन्स सेपरेट स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स, स्ट्रॉ मीन्स जो ये कचरा वचड़ा होता है, तो ग्रेन से अनाज से सारा कचरा अलग करता है, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। अब जब सफाई हो गई है पूरी क्रॉप्स की उसके बाद क्या करेगा, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, जो अच्छी फसल है उसे ए ग्रेड देगा जैसे बासमती राइस, और जो बी ग्रेड मीन्स जो नॉर्मल चावल होता है, जो कोर्स ग्रेन जो मोटा अनाज है जो गरीब लोग खाते हैं उसे सी ग्रेड है। इस तरह से ग्रेडिंग कर देगा प्रोड्यूस की, ग्रेडिंग का प्रोड्यूस। नंबर 4, फिर क्या करेगा, जब ग्रेड दे देंगे पैकेजिंग, अब ग्रेड दे दिया कि ऐसे ऐसे, फिर उसको पैकेज या पैकेट में बांधेगा, देन पैकेजिंग द प्रोडक्ट या पैकेजिंग द प्रोड्यूस। फिर आता है स्टोरिंग द प्रोड्यूस। अब भाई पैकेजिंग हो गया, अब एक साथ थोड़ी ना पूरा का पूरा जो क्रॉप्स है वो बच जाएंगे या बिक जाएंगे, तो पैकेजिंग करने के बाद वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा सामान को इन वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस मीन्स जो एक तरह से जिससे आपकी जो क्रॉप्स वगैरह है वो सालों साल चलती है। सो स्टोरिंग द प्रोड्यूस, एंड आफ्टर दैट सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट। क्लियर?